नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने राज्य सरकार पर कल्याण कर्नाटक के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया। ब्रिम्स कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों के अव्यवस्था पर आक्रोश जताया। जान भी बचानी चाहिए, जीवन भी चलते रहना चाहिए, सीएम बोम्मई ने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। अधिकारी वही है लेकिन परिणाम अलग, जिलाधिकारी के साथ संवाद में पीएम मोदी ने कही ये बात। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पंजाब के लिए निकम्मे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का हमला। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। राज्य की भाजपा सरकार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में विकास करने पर पूरी तरह विफल हुई है, कहा केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने। वह शहर के अकमादेवी कॉलेज में पत्रकारों से बात कर रहे थे। खंड्रे ने जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान और केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक रख देना ही विकास नहीं होता है। सरकार के पास इस क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य योजना नहीं है, सभी काम ठप पड़े हैं। ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ವರ್ಷ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚಾಗಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ 1500 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕು, ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು 2242 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇವರು 469 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಬರೀ 39 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ. 1589 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. 1357 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 1500 ಕೋಟಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 240 ಕೋಟಿ. ಈಗ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು 1500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷವೂ 2000 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಇವರು 277 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 1131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವರು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. 1500 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೋನಾ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಇವರು ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 277 ಕೋಟಿ, 1131 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 240 ಕೋಟಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। इस बीच खंड्रे ने डॉक्टर मसूद के सवाल के जवाब में कहा कि उडुपी में विद्यार्थियों को हिजाब के लिए सख्ती की जा रही है। यह भाजपा सरकार की भेदभाव पैदा करने वाली नीति है। संविधान ने सभी को एक स्थान दिया है। खंड्रे ने उडुपी में हिजाब के लिए सख्ती की आलोचना की है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಲ್ ವಿಷಯ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಅವರೇನು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನರಿಂದ
ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇವತ್ತದು ಸೌಹಾರ್ದಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಣ ಹೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಸದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಖಂಡನೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ब्रिम्स कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों ने आज कॉलेज के बाहर अपने रिजल्ट्स और सुविधा के संबंध में हंगामा करते हुए संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहा, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस बीच हमारे चैनल से बात करते हुए पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों ने अपनी समस्या सुनाई। विद्यार्थियों का कहना है कि क्लास का कोई समय नहीं है, आई कार्ड नहीं है, कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स की कोई लाइब्रेरी नहीं है। हद तो यह हो गई कि परीक्षा में 50 से अधिक नंबर लेने के बाद भी फेल किया गया है, जबकि 35 नंबर पास होने के लिए काफी है। इसके अलावा विद्यार्थियों ने फीस वसूलने के बाद रसीद न देने का आरोप लगाया है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ರೀ. ನಾ ಬೀಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಓದಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆವು. ಫೇಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಇದೆ. ನನ್ನ 42 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಫೇಲ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 35ಗೆ ಪಾಸ್ ಇದೆ, 42 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೂ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖರೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ, ನಾಡ್ದು ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ತೊಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆ ರಸೀದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋ ಥೋಡೆ ಅಲಗ್ ಹೇ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಬ್ರರಿನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಜरूरत ಇದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಸರ್ಸ್ ಓಡಿಸಾಕ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಲು ಇಡಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಭೀ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಬೇಕು, ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಮತ್ತು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅಗರ್ ಸಹ 1-2 ಡೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾರ. ಸರ್ अब हमारा रिजल्ट 14 ಡೇಟಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 14 ಡೇಟಿಗೆ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 53-35 ಅದ ರೀ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 35 ಅದ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿತ್ತಾರ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸು 53 ಬಂದರೂ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಫೇಕ್ ಅದ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿತ್ತದ. ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಾರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಸಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಾವ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅವ. ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಾರ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರ. बट रिसिप्ट वन सरतनो ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. एक बार भी रिसिप्ट नहीं दिया हमको. और कॉलेज की आईडी दिलवाते हैं और करते ये करते, सिर्फ नाम के वास्ते बोलते हैं सब. कॉलेज की आईडी भी नहीं है हमारे पास, कुछ प्रूफ ही नहीं है हम ये ब्रिम्स कॉलेज की स्टूडेंट है बोलने के लिए. राज्य सरकार ने शुक्रवार को सप्ताहांत कर्फ्यू को हटाने की घोषणा की है, जबकि राज्य में सकारात्मकता दर 19% है। सरकार कर्फ्यू हटाने का फैसला आम जन के व्यापार आदि को देखते हुए लिया गया है, जबकि महामारी का प्रकोप जारी है। लोगों को महामारी के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन बीदर शहर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोग शहर के सड़कों पर बिना मास्क के धड़ाके से घूम रहे हैं, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक अंतर का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा कर्फ्यू हटाया गया है। रात का कर्फ्यू जारी होने के साथ साथ नियम भी लागू हैं। लोगों को भी समझना चाहिए कि महामारी का प्रकोप जारी है, एहतियात जरूरी है। बीदर जिले में भी प्रतिदिन कोरोना के मामले 300 के पार हैं। प्रशासन को नियमों का पालन करवाने के लिए कदम उठाना चाहिए। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य की। हालांकि कोविड की तीसरी लहर में मामलों की संख्या अधिक है,
लेकिन गंभीरता कम है। इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध है, ठीक होने के दर भी ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा कि इसलिए हमने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम आदमी और मजदूर वर्ग को असुविधा से बचने के इरादे से निर्णय लिया है कि जीवन भी बचाया जाए और जीवन भी चलता रहे। जैसे कि कर्नाटक में महामारी की तीसरी लहर के बाद से सप्ताहांत कर्फ्यू हटने के बाद पहला दिन है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य ने सकारात्मकता दर 19.23% दर्ज की है। यह तब आता है जब कर्नाटक ने शुक्रवार को 22 मौतों के साथ 48,049 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने स्पष्ट किया है कि दूध के दाम बढ़ाने और बिजली और पानी की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावों की सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस सेक्युलर के प्रेसिडेंट एच.डी. देवेगौड़ा कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि उनमें खास लक्षण नहीं पाए गए हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है। देवेगौड़ा के साथ उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। देवेगौड़ा ने कहा कि खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में यह बताया कि वे और उनकी पत्नी चन्नम्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दोनों और परिवार के अन्य सदस्य सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद करते हुए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सारे संसाधन वही है, सरकारी मशीनरी वही है, अधिकारी वही है, लेकिन परिणाम अलग है। प्रधानमंत्री ने इस संवाद के जरिए कार्य के स्तर पर विभिन्न जिलों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके उस शख्स को गिरफ्तार किया है। सीआईडी साइबर क्राइम विंग ने उस शख्स को पकड़ा है जिसने सीएम को मारने की धमकी दी थी। पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के मूल निवासी और हैदराबाद में बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले राजपालम फनी को गिरफ्तार किया। एसपी सीआईडी साइबर क्राइम जीआर राधिका ने बताया कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो नेताओं की बयानबाजी से माहौल भी गरमाने लगा है। शनिवार को पंजाब के पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान तीनों पर अपने बयानों से तीर छोड़े। कैप्टन अमरिंदर काफी बेबाक नजर आए। उन्होंने दावा किया कि इस बार पंजाब की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान पर भी हमला बोला। कहा कि मान एक कॉमेडियन है और पंजाब की जनता को कॉमेडी नहीं गंभीरता चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास पंजाब के लिए कोई मॉडल नहीं है, वो सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। केरल में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में
पूजापुर सेंट्रल जेल में 262 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 3 दिनों में 936 कैदियों पर एंटीजन टेस्ट किए गए, जिनमें से 262 सैंपल पाए गए। इसके बाद से जेल में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधीक्षक ने मांग की है कि संक्रमित कैदियों की देखभाल के लिए विशेष चिकित्सक नियुक्त किए जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमित कैदियों को एक अलग सेल ब्लॉक में ले जाया गया है। इस बीच कन्नूर की केंद्रीय जेल में 10 कैदियों में कोरोना का संक्रमण मिला है। संक्रमित मरीज कोझिकोड और कासरगोड से के रिमांड कैदी हैं। इन कैदियों को अलग सेल ब्लॉक में आइसोलेट किया गया है। जेल में बंद अन्य कैदियों के और भी परीक्षण किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन पर सऊदी गठबंधन सेना द्वारा हवाई हमले की निंदा की है। बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 70 लोग मारे गए थे। ये हवाई हमले सादा में हुती क्षेत्र की एक जेल पर किए गए थे, जिसमें एक टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी भी शामिल थी, जिसमें कम से कम 3 बच्चे मारे गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हमले में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गुटेरेस ने कहा कि युद्ध को रोकने की जरूरत है। उन्होंने अबू धाबी पर हुती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले की भी निंदा की है। ईरान समर्थित विद्रोहियों ने 17 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया था। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। चकाचक सारा अली खान ने जीता दिल, धनुष और अक्षय कुमार का भी चला जादू, हटकर है ये लव स्टोरी। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पंत ने मानी गलती, कहा इस पर चर्चा हुई थी कि मुझे मैच परिस्थितियों के अनुसार कैसे शॉट खेलने हैं। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। सरकारी बैंक BOI का ग्राहकों को अलर्ट, लगातार 3 दिन ठप रहेगी सेवाएं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। KPCC कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने राज्य सरकार पर कल्याण कर्नाटका के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया। ब्रिम्स कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों के अव्यवस्था पर आक्रोश जताया। जान भी बचानी चाहिए, जीवन भी चलते रहना चाहिए, CM बोम्मई ने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। अधिकारी वही है लेकिन परिणाम अलग, जिलाधिकारी के साथ संवाद में PM मोदी ने कही ये बात। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पंजाब के लिए निकम्मे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का हमला। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और अन्य समाचारों के साथ। महामारी को हल्के में न ले, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।